Hello students, in the series of class 11th, today we learn about the topic formation of atomic orbitals, boundary surface diagrams and the shapes of various orbitals. You can easily learn the formation of various atomic orbitals. So you enjoy the formation of atomic orbitals in this lecture. Shapes of atomic orbitals and boundary surface diagram. As you know that the orbital wave function और साइज जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ऑर्बिटल वेव फंक्शन यहां पर क्या है साई, हैव नो फिजिकल मीनिंग फॉर एन इलेक्ट्रॉन, हैव नो फिजिकल मीनिंग नो फिजिकल मीनिंग। जैसा मैंने आप लोगों को समझाया था कि साई जो है एक वेव एम्पलीट्यूड है और वेव जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में बनाई जाती है, और यहां पर ये बताता है साई की प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव तो नहीं हो सकती, इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, इसके बाद में देखिए साइंटिस्ट थे मैक्स बॉर्न। मैक्स बॉर्न ने ये बताया that square of wave function at a point gives the probability density. ठीक है, according to Max Born, the square of wave function क्या, square of wave function at a given point give the probability density, probability density of the electron at that point, अब देखिए यहां पर क्या होता है, द वेरिएशन ऑफ साई स्क्वायर, साई स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ आर for the 1s and 2s orbitals. 1s and 2s orbitals is given as कैसे देंगे, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहां पर आप लोग देख लें। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे है, यहां हमने एक ग्राफ दिया, द ग्राफ इज रिलेटेड टू द psi square and r in nanometer for 1s orbital, r in nm for 1s orbital, किसके लिए 1s orbital। You can see the graph decreases sharply like this. Okay, this is for 1s, and for 2s the graph is given as psi square and r in nanometer for 2s orbital. Here the graph show a sharp decrease and then a maxima, not like this. This is just like this. Okay,
this is for 2s. This region of psi square is called node. Okay, and this graph is for 2s. अब यहां पर क्या इसका डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको बता दूं. देखिए डिस्क्रिप्शन में कुछ पॉइंट्स हैं यहां पर. वो पॉइंट्स क्या हैं देखिए फॉर 1s ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखिए यहां पर क्या है, साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम. कहां पर, आर की डिस्टेंस जब बहुत कम है, यानी मीन्स at the nucleus or near the nucleus the probability density is maximum for 1s, means the tendency of finding of electron or probability of finding of electron near the nucleus is maximum for 1s. Okay, and it decreases sharply as we move away from the nucleus. And in case of 2s orbital, the probability first decreases sharply and becomes 0, and then increases up to a small maximum, and then again decreases. And then we can say that the probability density in case of 2s have one node also. What is node? Node is the region where the probability density of an electron reduces to 0. So after reaching a small maxima, it again decreases and approaches 0 as the value of r further increases. ये आप देखिए यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ से बड़ी मैक्सिमा पर पहुंची और उसके बाद में फिर ये वैल्यू डिक्रीज होती है और ये 0 की तरफ चली जाती है. ठीक है, और 0 का मतलब अगर हम r की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर जो साई स्क्वायर की वैल्यू है वो लगातार डिक्रीज हो रही है. अब इसमें मैंने आपको नोड टर्म बताई. नोड इज ऑल्सो नेम्ड एज नोड और नोडल प्लेन और नोडल सरफेस. देखिए वो रीजन जहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिड्यूस होकर के 0 हो जाता है. द रीजन where the probability of finding of electron reduces to 0. Probability of finding of electron reduces to 0 or probability density reduces to 0. Probability density reduces to 0 is called node or nodal surface or nodal plane. अब देखिए नोड्स के लिए भी यहां पर ns ऑर्बिटल में n-1 नोड होते हैं. ns orbitals has n-1 nodes. कितने नोड्स? n-1. अगर 1s के लिए देखेंगे तो 0 नोड आएगा. ठीक है, देखिए फॉर 1s नोड कितने हो जाएंगे? नोड्स हो जाएंगे 0. फॉर 2s तो यहां पर नोड्स हो जाएंगे 2-1, दैट इज 1 node. For 3s, 3-1 is equal to 2 node. Here the term boundary surface diagram. देखिए बाउंड्री सरफेस है क्या, यहां पर बात हो रही थी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की. तो द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वेरिएशन
can be given in terms of electron cloud, and electron cloud diagrams good representation of the shapes of orbitals. तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ पी के लिए क्या होता है, ये होता है साई स्क्वायर और यहां पर होता है आर, ठीक है, सॉरी हाँ आर है, लेकिन आर किसके लिए, फॉर 2p के लिए, कम से कम 2p तो होगा ही। तो इसमें ये जो ग्राफ है वो इस तरह से आता है, ऐसे करके, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एक मैक्सिमम तक बढ़ती है और उसके बाद शार्पली डिक्रीज हो जाती है पी के केस में। बाउंड्री सरफेस डायग्राम, बाउंड्री सरफेस डायग्राम, तो यहां पर देखिए क्या, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वेरिएशन given in terms of charge cloud। देखिए मैंने चार्ज क्लाउड के बारे में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो रही है, वो सब क्या कहलाता है, चार्ज क्लाउड कहलाता है, ठीक है। ये हो गया 1s के लिए। देखिए ये न्यूक्लियस है और इसमें यहां पर ये जो चार्ज क्लाउड है उसके लिए देखिए न्यूक्लियस के पास का रीजन, उसके बाद में यहां पर ये आएगा 2s के लिए, ऐसे करके थोड़ा सा रीजन यहां पर हमने क्या किया है, छोड़ दिया है। ये हो गया किसके लिए, 2s के लिए। तो इस तरह से एक यहां पर ये देखो, ये जैसे जो जहां तक इलेक्ट्रॉन है वहां पर हमने एक बाउंड्री खींच ली, सरफेस की बाउंड्री ले ली, उस बाउंड्री में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यानी 95 to 99% प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मिलने की है, तो उस रीजन को यहां पर कहा गया है बाउंड्री सरफेस डायग्राम। एंड these cloud gives good representation of shapes of orbital। अब देखिए ये तो हमने बता दिया, लेकिन जो बाउंड्री सरफेस है उसे काउंटर सरफेस टर्म भी दी जाती है। तो बाउंड्री सरफेस और काउंटर सरफेस इज ड्रॉन इन स्पेस, बाउंड्री और काउंटर सरफेस इज गिवन और इज ड्रॉन इन स्पेस में ही ड्रॉ करनी है, ठीक है। फॉर एन ऑर्बिटल which on which the value of the psi square is constant, value of psi square is constant and have probability देखिए डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 90 to 95%। ओके, तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, 10 द मोस्ट प्रोबेबल regions are called boundary surface diagrams
बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स और एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये होता है आपका बाउंड्री सरफेस डायग्राम और एटॉमिक ऑर्बिटल। अब देखिए यहां पर मोस्ट प्रोबेबल रीजन को ही यहां पर क्या कहा गया है, बाउंड्री सरफेस डायग्राम और एटॉमिक ऑर्बिटल। फॉर अ गिवन ऑर्बिटल ओनली दैट बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स ऑफ constant probability is taken to be good representation of the shape of orbitals which encloses a region or volume in which the probability of finding of electron is very high, and we can say it is about 90 to 95%. On the basis of boundary surface diagram, the shapes of orbitals can be predicted only, because this is not the exact location or position of the electron around the nucleus in a particular electron cloud or orbital. So first of all, what is the topic? Shapes of orbitals, in which first one is s orbitals. S orbitals are non-directional in nature, and they are spherical in shape. So you can say these are non-directional and spherical in shape. Spherical in shape means probability of finding of electron at a given distance is equal in all directions. The probability of finding of electron, probability of finding of electron at a given distance is equal in all directions, सभी डायरेक्शंस में ये बराबर होगी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब देखिए इसको समझने के लिए दो फिगर ले लेते हैं। ये हमने ले लिया 1s ऑर्बिटल का, यहाँ पर ये न्यूक्लियस आएगा और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है 1s ऑर्बिटल के लिए। तो ये 1s ऑर्बिटल सिमेट्रिकल है आपका, ये हो गया 1s, एंड देन दिस वन इज, एंड अकॉर्डिंग टू द रेडियल प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देयर आर टू रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिवन एज। आपने उस दिन ग्राफ देखा था इसका, तो उस ग्राफ में ये बताया गया था कि 2s के लिए प्रोबेबिलिटी पहले जो है ज्यादा होती है, उसके बाद फिर डिक्रीज होती है, मिनिमम हो जाती है, 0 हो जाती है और 0 के बाद फिर बढ़ती है। तो इस तरह से ये किसके लिए है, 2s ऑर्बिटल के लिए। इन 2s ऑर्बिटल देयर इज अ रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, देन दिस रीजन इज कॉल्ड नोडल। नोड कह सकते हैं इसको, हम सीधे सीधे लिखते हैं नोड। नोड का मतलब हो गया वेयर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, probability density reduces to 0।
2s orbital differs from 1s orbital in being larger in size and having nodal surface। तो जो नोड्स के बिहाफ पर और साइज के बिहाफ पर केवल डिफरेंस रहेगा, वरना 1s और 2s और 3s और 4s सब होंगे कैसे, स्फेरिकल। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं 2s ऑर्बिटल differs 1s orbital as larger in size, यानी साइज में क्या होता है, बड़ा होता है 2s ऑर्बिटल। और नोडल सरफेस में भी, नोडल सरफेस भी एक होगा जबकि 1s में नहीं होगा। एंड have difference in nodal surface and have a nodal surface। ये नोडल सरफेस जैसे हमने नोड लिखा है वो इसमें है और इसमें नहीं है। साइज ऑफ s orbitals increases with value of n increases। कैसे, देखिए 1s is greater, 1s is smaller than 2s is smaller than 3s is smaller than 4s। ये ऑर्डर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस ऑर्डर को आपको यहां पर क्या करना है, दिमाग में भर लेना है। साइज सबके चेंज होंगे लेकिन शेप एक जैसी होगी। Second one is shapes of p orbitals। p orbitals, देखिए p orbitals के लिए यहां पर जो l की वैल्यू होती है वो होती है 1। ठीक है ना, p orbitals के लिए। और जब l की वैल्यू 1 होगी तो यहां पर 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन मिल जाएंगे हमें। ठीक है ना, 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन। For p subshell L is equal to 1, that is 3 possible orientations are there। कौन कौन से हो सकते हैं 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन, करस्पॉन्डिंग टू वैल्यू m इज इक्वल टू -1। l की वैल्यू अगर 1 है तो m की वैल्यू -1, 0 एंड +1। दीज आर द वैल्यूज। 3p orbitals 3p orbitals in each subshell designated on the basis of coordination axis। ठीक है ना, designated as px, py and pz। ये यहां पर अब देखिए जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो एनर्जी में इक्वल होते हैं लेकिन ओरिएंटेशन में डिफर होते हैं। द 3 ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जीज दैट इज degenerate orbitals, but their orientation differs। कैसे, अब इसको समझें।
देखिए इसके लिए हम डायग्राम ड्रॉ कर लें। अगर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहीं पर कर देते हैं। देखिए ये जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स, वाई और जेड, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। इसमें होता क्या है कि जो लोब्स होते हैं, लोब्स, तो उन लोब्स एक्चुअल में जो पी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी इस तरह से मिलती है कि ये जो रीजन है ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का है, उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती है पी में, फिर दूसरी साइड के लिए इंक्रीज होती है। तो इस तरह से यहाँ पर एक प्लेन भी हमें मिल जाता है। उस प्लेन को हम बोलते हैं नोडल प्लेन। ये यहां से हमने क्या किया, ये वाला सपोज हमने इसको क्या किया है, यहां से पास कर दिया है, ऐसे करके एक शीट जैसे हमने इसमें से पास कर दी। तो ये वाला जो रीजन है जहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 है वो हो गया नोडल प्लेन, और जहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की उन्हें हमने यहाँ पर इस डंबल शेप में एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए जो डंबल शेप में एक्सप्लेन किया तो यहाँ पर पहला आपका होगा पी एक्स, फर्स्ट होगा पी एक्स, यानी एक्स एक्सिस पर लोब्स आएंगे पी ऑर्बिटल्स के इस तरह से। दिस वन इज पी एक्स एंड देन सेकेंड इज ये एक्स, वाई और जेड, ये हो जाएगा यहाँ पी वाई। ठीक है, तो वाई एक्सिस पर लोब्स आ जाएंगे इस तरह से, ये हो गया पी वाई। अब देखिए पी जेड अगर बनाना हो तो उसके लिए जेड एक्सिस पर लोब्स को ले लेंगे, ये हो गया एक्स, वाई और जेड। ये हो गया आपका पी जेड ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल अलग अलग एक्सिस पर है इसलिए ये यहां पर इस तरह से दिखाए गए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सभी क्या हैं, आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स हैं और इनकी एनर्जी भी सेम होती है। देखिए पी ऑर्बिटल्स की जो शेप बोली जाती है वो बोली जाती है आपकी डम्बेल शेप। डम्बेल, जो डम्बेल होता है ना उसी तरह से तो होता है पी ऑर्बिटल, तो उसकी शेप कैसी होगी, डम्बेल शेप होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो देखें डी ऑर्बिटल्स के लिए, डी ऑर्बिटल्स में you know very well that the value of L is equal to 2. ठीक है, value of L is equal to 2 for d orbitals, and according to the value of L is equal to 2 there are 5 possible values of M. ठीक है ना, तो यहां पर जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए एम की वैल्यू से आप ये बता सकते हो कि यहां पर कितने पॉसिबल ऑर्बिटल्स होंगे। वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 2, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम आर। देखिए क्या क्या हो जाएंगी, एम इज इक्वल टू -2 से स्टार्ट करेंगे, -1, 0, +1 और +2, ये 5 वैल्यूज हो जाएंगी। अगर ये वैल्यूज 5 हैं तो इसका मतलब ऑर्बिटल्स भी यहां पर 5 हो जाएंगे, 5 ऑर्बिटल्स। अब ये 5 ऑर्बिटल्स के डेजिग्नेशन हमें देने हैं। देखिए डेजिग्नेशन कैसे देंगे, इसका हो जाएगा dxy, इसका हो जाएगा dyz, इसका हो जाएगा dzx, इसका हो जाएगा dx² -y², और इसका हो जाएगा dz²। ये इनके नेम्स हैं, इनको इस तरह से डेजिग्नेट किया गया है। ठीक है,
तो ये यहां पर क्या हो गए, आपके डेजिग्नेशंस हो गए हैं। अब देखें जो डेजिग्नेशंस दिए हैं उन सबकी, यानी जो ऑर्बिटल्स है उन सबकी क्या है, एनर्जी सेम है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस तो है। देखो ये 3 बिल्कुल एक जैसे लिखे गए हैं और ये 2 अलग हैं, तो इसका मतलब इन 3 की एनर्जी तो बिल्कुल एक जैसी है, ठीक है। और इनमें एक बात और, जैसे पी ऑर्बिटल में आपने देखा तो 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। यहां पर लोब्स होते हैं आपके 4। डी ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है, डबल डम्बल होती है, डबल डम्बल, यानी उसमें लोब्स 2 की जगह क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहां पर थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स की एनर्जी सेम होती हैं, हैव सेम energies, same energy, each consisting of 4 lobes of high electron density, high electron density lying in x, y, y, z और z x प्लेन में। जो डेंसिटी है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यही आगे बढ़ा लेते हैं, लाइन इन एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन, ठीक है। और जो बाकी के होते हैं उनकी एनर्जी, इन 2 की एनर्जी अलग होती है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इनकी शेप इनसे अलग होगी, ठीक है ना। जो शेप होगी वो इनकी तीनों की एक जैसी और इनकी अलग होगी। डिफर इन शेप देन रिमेनिंग 3, रिमेनिंग 3। अब देखिए इसकी शेप ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर एक पॉइंट लिखने का और है, वो भी लिख लेते हैं इसमें। जो नंबर ऑफ नोड्स एंड डी ऑर्बिटल्स में, उनके लिए एक यहां पर पॉइंट दे रखा है, फॉर डी ऑर्बिटल्स रेडियल नोड्स आर, जनरल में मैं एक फॉर्मूला इसका दे देते हैं हम, वो हो जाता है n माइनस एल माइनस 1। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे हम इनका दे सकते हैं वो आप देख लीजिए। देखें, ये हमने यहां पर बनाया पहले x और y। यहां पर ये जरूरी नहीं है कि कोऑर्डिनेट्स 3 डायमेंशनल होते हैं, तो 3 डायमेंशन में ये x, y, z एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। चाहे आप ऐसे x ले लो, y, z ऐसे, तो कुछ भी आप ले सकते हैं। तो यहां पर हमने लिया x और y, ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। इन दोनों के बीच में जो लोब्स आएंगे बीच में ऐसे, और एक लोब आएगा ऐसे। अब इसमें z कहां गया, z मैं बता देता हूं। देखिए z इस तरह से आएगा, ये लाइन हमारी आ रही है यहां से, ये ऐसे करके आई और ये ऐसे करके निकल गई। तो इस z एक्सिस का यहां पर, बल्कि यहां से मैं ला करके इसको ऐसे दे देता हूं जिससे 3 डायमेंशन में आपको लगेगी ये यहां से बिना मतलब के पास हो रही है। ये z हो गया, यानी ये जो लोब्स मैंने बनाए हैं वो x और y एक्सिस के बीच में बनाए हैं, ठीक है ना। यहां z का कोई रोल नहीं है इस डायग्राम में। देन सेकंड वन इज, ये हो गया आपका dxy, ठीक है। देन dyz बनाना है। अब हमने क्या किया, यहां पर हमने y ले लिया
और यहाँ जेड ले लिया। ठीक है, ये एक्सिस का आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं, सिंपल है ऐसे। और ये हो जाएगा इस समय आपका एक्स। ये कैसे हैं एक दूसरे से? ऐसे हैं। ये तो प्लेन में है और ये वर्टिकल में है और ये हॉरिजॉन्टल में है। ये दोनों वैसे हॉरिजॉन्टली हैं लेकिन एक दूसरे से 90 डिग्री पर भी हैं। ठीक है, तो इससे यहां पर हमें क्या मिल जाएगा कि जो लोब्स हैं वो हमारे किसके बीच में आ गए? वाई और जेड के बीच में आ गए। अब तीसरा वाला यहां पर बिल्कुल ऐसा ही होगा। देखिए तीसरा मैं यहीं से डेराइव कर देता हूं। इसमें मैंने क्या किया, इसमें लिख दिया डी जेड एक्स और यहां पर मैंने जो एक्सेस ली उन्हें चेंज कर दिया। मैंने एक एक्सेस ये ले ली जेड और ये कर दी वाई, देन इट बिकम्स डी जेड एक्स। ठीक है, अब बचे हमारे पास दो। एक है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। ठीक है, बोला गया क्या? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स और वाई एक्सिस पर ही लोब आएंगे इस तरह से, और ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देन लास्ट वन, देखिए लास्ट में आपका बचा डी जेड स्क्वायर। आप ये एक्सिस तो बना लीजिए यहां पर, एक्स वाई, ये वाई एक्सिस हो गई यहां पर और ये जेड एक्सिस हो गई। एक तो लोब इस पे आया, ये कौन सा है? ये डी जेड स्क्वायर है, और एक लोब इसी के ऊपर और जेड एक्सिस पर ही है ये। तो इसको हमने एक रिंग की फॉर्म में इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि एक लोब यहां पर और दिया गया है जो यहीं पर इसी के बिल्कुल जैसा और इसी के बिल्कुल ऊपर है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, रिप्रेजेंटेशन दे दिया किसका? डी जेड स्क्वायर का। तो इस तरह से आपके ये लोब्स हो गए डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर।